Settle down now. कल क्या तक किया था? Start with the demography, population density. We start with the next part. That is a few statistical terms. यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है और बाहर करना है. Nothing to be explained or described about. What we need to learn then is the next part. So I think we start with the part. सबसे पहले can be asked for the fill in the blanks. Study of human population is known as demography. So name the following, fill in the blanks or define. Yeah. On group. दस मिनट के बाद बंद कर ठीक है एंड अगर तेरा अभी हुड ऊपर गया ना तो क्लास के बाहर ही जाओ okay the statistical study of human population what we say demography reference to size density distribution and other vital statistics next they are given you is population density अक्सर वहां पे ध्यान देना number of individuals per square kilometer at any given time then normally when it is asked to define you always write the number of individual per square kilometer अगर वो at any given time ये miss out कर दिया तो no marks are given. Try to understand this as a classroom example over here. If I take this as 1 square kilometer and the number of people sitting right now is I would say 50. So 50 is the population per square kilometer at this given time. जो अपना time note किया गया. पर 1 या 2 घंटे के बाद यहाँ पे 0 होगा. So at that time, can I say it is 50 square kilometer, 50 population per square kilometer? No. So important है population के किसी भी definition में, you have to mention at given time. ये at particular time, particular area, वो सब आना चाहिए.
So individuals per square kilometer at any given time is what I mean by density. वहाँ पे कुछ example दिए हुए हैं. Netherlands 407 persons per kilometer square, Japan 348 persons per kilometer square, India 392 and US 33. See the density over US part and the Netherlands or India also. Then birth rate or natality. The number of live births per 1,000 people of population per year. Correct? Can you explain me? Live births per 1,000 people of population per year. What do you mean by that? नीचे लिखा देखो. If there were 440 live births in a population of 20,000, the birth rate would be 440 divided by 20 because population of 20,000. So it is live birth per 1,000. Okay. So per 1,000 के हिसाब से 20,000 becomes 20 and the number of people were born. So 440 divided by 20. That would give me the birth rate or natality. Birth rate अगर ज़्यादा होगा, what does it indicate? The population is young increasing. If the birth rate is less and the death rate is more, probably the declining population. Okay. So death rate or mortality is the number of deaths per 1,000 of population per year. Important per year miss out नहीं करना है. Okay. वो per 1,000 लिख के आओगे, per year miss out करोगे, फिर problem आएगा. Then growth rate of a population is the difference between birth rate and death rate. So जो कभी नहीं पूछेंगे वो ये. It is common sense. क्या? What is growth rate? The number of birth minus the death rate. Then as long as the birth rate exceeds the death rate, the population grows. If birth rate is lower and the death rate, the population declines. ये common sense है, सबको पता होना चाहिए. उसके बाद वो पैराग्राफ दिया हुआ है, वो पैराग्राफ आप खुद पढ़ लेना, कुछ काम का नहीं है. So 2 मिनट दे रहा हूं पढ़ने के लिए and then we move ahead the next part. Done? Yes, sir. Any doubts? No, sir. Shall I go ahead? Yes, sir. Next is need for adopting control measures. Now, what is the need for adopting control measures? For example, per capita income करना. जितना ज़्यादा population होगा, उतना per capita income comes down. Then can anybody explain what is per capita income comes down? What is per capita income? Total population average. Average income. The average income of a person. Per capita income average भी बोलते हो या simple अगर language में समझाना है हमें तो घर पे मम्मी डैडी है, दोनों कमा रहे, good earning, and तुम पैदा हुए. Okay, so obviously the expenditure is increased. अब तुम्हारे बाद एक भाई पैदा हुआ, तो उसके ऊपर और बढ़ेगा. Okay, उसके बाद और एक भाई हो गया. Okay, तो 3 हो गए. So income which has to be income fix है ना, mom dad मान लो जो कमा रहे वो 1 लाख था, पर पहले खाने वाला वो 2 और 1 ही था. अब 3 हुए, फिर 5 हुए, अगर बढ़ते जा रहा है तो obviously the expenditure to be spent on one person would be comparatively very less. So per capita income goes down and then you will not live a luxurious life. Okay, तुम्हें जैसे चाहिए वैसे नहीं होगा. So you have to control your needs at that time. Then natural resources like land, minerals, wood, etc. decreases. General health goes down. How general health goes down? Okay. The way of living. Scarcity of food or
पॉइंट लॉजिक है पर वो कोविड वगैरह इसके लॉजिक है। अभी तेरा पॉपुलेशन बढ़ा इसके लिए बेड्स कमी होगी, सबके सब अचानक बीमार गिरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इट इज रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ। तो ये जो भी लिखा है इट इज विद रिस्पेक्ट टू अ स्मॉल पॉपुलेशन, बट वो बढ़ते जा रहा है। सो देन व्हाट हैपेंस इज देयर वुड बी स्कैर्सिटी ऑफ फूड। फैमिली को सोचो चिल्ड्रन, फैमिली का इनकम कम हुआ, दूसरा ऑब्वियसली रिसोर्सेज सेक्टर कम हो रहे हैं, तीसरा एज अ फैमिली ऑब्वियसली उसके पास द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी ऑन फैसिलिटीज लाइक मेडिकल वुड बी कंपैरेटिवली लेस। जैसे अपन एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, आई थिंक एवरीबॉडी इज अबाउट दिल्ली। Okay, Kejriwal has done a lot of fantastic things over there. What is their medical facility has improved? Sir, her smog is improved. Sir, in every village there would be a hospital free for poor. उसको नाम दिया गया मोहल्ला क्लिनिक। Okay, every small part there is a clinic created which is giving free of things to the patients. सब कुछ फ्री है। Okay, वहां पे वो सब कुछ फ्री बांट रहा है, फ्रीबीज। Okay, वही चीज महाराष्ट्र क्यों नहीं करते? करने के लिए हम कर सकते हैं that, उसके लिए बहुत बड़ी ही चाहिए, करप्शन मुक्त होना चाहिए। पर दिल्ली का पॉपुलेशन और महाराष्ट्र का पॉपुलेशन, जितना दिल्ली का पॉपुलेशन है उतना मुंबई का शायद होगा, उससे भी शायद हम लोग ज्यादा ही होंगे। सो देयर ही कैन डू, हियर इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज बजट उतना ही एलोकेट किया गया है कि उसके लिए उतना फैसिलिटीज देना जरूरी होगा। Then children medical general health would go for a toss. Then overall the large population of a country is the resulting of a large families. The quality of life goes down. Therefore, is pressing need for adopting population control measures. Then children population education and population control. A small part. उसके बाद अपना contraceptive method चलो जाएंगे। सबसे पहले the message of population problem should reach as many people as possible, including those living in a very remote area. अगर आज की डेट में ये प्रॉब्लम नहीं है, पर पुराने जमाने में ये था क्या, एक टीवी वाज अ लग्जरी आइटम। मतलब बहुत कम जन के पास टीवी होते थे। आई रिमेम्बर सेकंड या थर्ड फोर्थ में टीवी आया था घर पे, तो इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस कि टीवी घर पे आया, दैट टू ब्लैक एंड व्हाइट। आज की डेट में उसको कंपेयर करता हूँ विथ माय मॉडर्न लाइफ कि आई रिमेम्बर वो टीवी कम से कम 15 साल के ऊपर चला, और वो भी इंडियन जुगाड़ के चेंज नहीं होगा, वही यूज करना है। और वो 15 साल चला, अभी घर पे यूज होता है 3 साल के बाद, यार छोटा लग रहा है। दीवार सी द थिंग्स, दीवार को पेंट किया, दीवार के कंपेयर में टीवी छोटा लग रहा है। So अपन ऐसा नहीं दीवार को पेंट किया, टीवी बड़ा करना है। That requirement is luxurious life. So that's one thing. अब पुराने जमाने में यूज कैसे जाती थी, एक स्ट्रीट प्लेस, एंड सेकंड वन वाज उससे भी बेटर ऑप्शन रेडियो। चल अभी भी रेडियो ही जाता है एकदम इंटीरियर पार्ट से, टीवी केबल शायद नहीं पहुंचा होगा, तो रेडियो पहुंच रहा है, और वो एयरटेल का क्या डिश टीवी है उसका ऐड दिखाते हैं कि वो पहुंच रहे हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग रेडियो, दैट स्ट्रीट प्लेस was the common means to educate the people in the remote areas. Then people should be made aware of the advantages of having small families, at the same time disadvantage of having many children. नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ही कोई एक ट्राइबल एरिया है अपने इंडिया में, वेयर they have a very different type of marriage. ये डिस्कवरी करेगा, तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज, मतलब वहां पे एक्चुअली देयर इज समथिंग व्हाट वी स्टडीड इन महाभारत, 4 भाइयों की एक ही वाइफ,
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और ट्राइबल के लिए ही सीमित है. We do not adopt all this nonsense stuff. It is not nonsense, I would say. Then उनका उसमें एक logical reason है जो discovery, and it was मतलब mind blowing. You can give an example for it. उनका जब इंटरव्यू किया गया था, उनका सिंपल है क्या, अगर 3 भाई है, and they showed on to the paper was 3 भाइयों में it's a tribal area, interior part है, उनके पास इतने रिसोर्सेज होते नहीं है. So, अगर उनका रिसोर्स मान लो एक छोटा सा लैंडफिल है, एक लैंड है, 3 भाइयों में डैडी मर गए, 3 भाई बचे, क्या होगा? हर एक के 2 बच्चे पैदा होंगे, तो उसके बच्चे पैदा होंगे, बचेगा क्या? घर का चिराग दिया हेलोजन ट्यूबलाइट सेल पे जीते है ना. सो व्हाट दे आर डूइंग इज, तीनों भाइयों में एक ही वाइफ है. So obviously उनका जो लड़का हुआ, he would be looking after the entire family. So there is no division of these things. एक ही बेटा है या 2 बेटे हैं. So it is a part of the family itself. Because at the end of the day, अपन बड़े प्यार से कितना भी बोले, का चिराग दिया हेलोजन ट्यूबलाइट, तो इतने दिन से मैं बोल रहा था, जो कभी नहीं जलता होगा. But the fact is, क्या वो जलता नहीं जलता वो बात की बात है, उसको जलाने वाली एक लेडी होती है, कि जो डिवीजन करती है वो हमेशा एक लेडी होती है, and that is always a wife. क्या फैमिली के बीच में नो, उसको ऐसा है तुम्हें इतना कम मिला, and she is the trouble creator. सब ये प्रॉब्लम आता है. So लड़कियां देख रही है, पर फैक्ट तो वही है. Next, China is almost reaching the norm of 1 child per family. Outdated textbook. China ने निकाल दिया है, अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है. Okay, and India is still striving hard to reach the 2 children per family norms. और सच्ची दुख की बात है, because India is the first country to adopt family planning in the world. 1951 में हमने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट किया अंडर द हेडिंग रूरल चाइल्ड हेल्थ केयर डेवलपमेंट. चल, पूरी दुनिया में सबसे पहले कंट्री जिसने चाइल्ड हेल्थ केयर में ये फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट किया. हमारे बहुत टाइम के बाद चाइना ने अडॉप्ट किया, पर दे अचीव्ड एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टुवर्ड्स. ओके, उसका अपना एक रीजन हो सकता है जो मैंने स्टडी करने के बाद सोचा होगा. नहीं, आई रिमेम्बर 51 में अडॉप्ट किया ना, अभी कितना है? 71. कितने साल हुए? 70 के आसपास. हाँ, लालू प्रसाद यादव या पीवी नरसिम्हा राव, मतलब ही इज गॉन, बट लालू प्रसाद यादव अगर उनका करंट एज देखा जाए तो समवेयर अबाउट 65 प्लस होंगे, 60 के आसपास हो जाएंगे, है ना. तो अगर 60 का अगर एज पकड़ता हो तो जब अडॉप्ट किया गया होगा तब शायद वो 10 साल के होंगे चाहिए, 10 या 5 साल के होने चाहिए. सो बाय द टाइम ही वुड हैव बीन एक्टिव पॉलिटिक्स, वो कॉलेज पॉलिटिक्स में जब आगे होंगे 19-20 साल के आसपास, तब तो इट वुड बी 60 और 65 70 के आसपास होंगे. ओके, तब तो उनको अक्ल भी आई होगी. ओके, और तब ये पॉलिसी था भी. सो व्हाट वाज आवर रोल मॉडल? क्या अपने नेता लोग ने रोल मॉडल ऐसे देना चाहिए कि बाबा हम 2 हमारे 2 या 1, बट आवर रोल मॉडल वाज हम 2 हमारे 14. स्टीवन नरसिम्हा राव आई थिंक 14 है, लालू प्रसाद यादव 11 या 13 है, 11 या 13 थे. महारानी में 12 बच्चे देखा है. Whatever, पर 11 या 13 है, and they are all educated, no doubt about it. तो चलन सोचो, उस टाइम के जो लीडर्स थे, एक के 11, एक के 13, एक के 14, पीवी नरसिम्हा राव, और भी बहुत सारे जिनके 12, 13, 14 वगैरह. एंड मे बी देयर रीजन वुड बी वन रीजन, क्या 14 बच्चे हो जाए और 14 के 14 पॉलिटिक्स में आ जाए, तो
all 14 cabinet chairs to their children only. Corruption in the house. ना तो हाँ नहीं पूरा पार्टी भी देख आज की डेट में सिंपल है जैसे आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में देखते हैं क्या एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे को पिन पॉइंट कर रहे हैं तूने करप्शन किया मैंने करप्शन किया पर भाई 14 के 14 भाई बहन ही है तो प्रॉब्लम ही नहीं उठेगा ना बिकॉज एक का नाम लिया तो उससे सब 14 के 14 जाएंगे पर करप्शन होके फैमिली का ही पार्ट है तो भाई तेरी कोई किसी का नाम नहीं लेगा एंड एवरीथिंग विल बी एकदम प्रॉपर गोइंग मस्त जिंदगी चलेगी दैट माइट बी द कॉमन रीजन मे बी फॉर दैट पर्पस क्या नहीं अफसोस तेरे लिए लागू नहीं तुम मुंह खोली मत बेटर ऑप्शन दे लिए the orthodox view to have at least one son especially in Indian society should be modified by education then do you think this has been changed for so many years तो किस में चेंज हुआ एजुकेटेड पीपल में या नॉन एजुकेटेड में ज्यादा क्योंकि अभी एजुकेशन मतलब if a person is well educated उसमें ये व्यू चेंज हुआ है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए दैट इज नॉन एजुकेटेड जो बोलता है कि नहीं लड़का लड़की कोई चलेगा इंडिया में ये उल्टा है बोलना स्टैटिस्टिक्स भी यही बताएगा कि फॉर अनएजुकेटेड पर्सन ना उसको कोई नहीं फर्क पड़ता लड़का हो या लड़की हो और जितना एजुकेटेड है ना उसको फर्क पड़ता है मैंने यार इतना बड़ा अहंकार खड़ा किया है उसको कौन देखने वाला and that's the actual fact okay? and I can give you very common example मेरे खुद के 3 बेस्ट फ्रेंड है all 3 में से प्रॉपर एजुकेशन उसमें से तो एक को तो मैं गाली देता हूँ बिकॉज इज अ डॉक्टर बाय नेचर ओके इसके लिए गाली ज्यादा देता हूँ बिकॉज लड़की पैदा हुई एंड इज रीच बॉर्डर टू लुक आफ्टर द लड़का चाहिए okay? मेंटालिटी कांट चेंज देन वही अगर एक गरीब को बोला तो सीधा बोलता है बच्चे भगवान की देन है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसका उसके लिए वो गॉड्स गिफ्ट है अब वो लड़का है या लड़की है उससे नहीं फर्क पड़ रहा है पर अपने एजुकेटेड पीपल को फर्क पड़ता है यार लड़की तो पराया धन है ऊपर से उसको दहेज दे रहा है लड़का आया तो मेरा कम से कम एम्पायर देखेगा बिजनेस कंटिन्यू करेगा बुढ़ापे का सहारा बनेगा बहुत कुछ क्या वैसे तुम लोग को देख के तो माँ बाप को सोचना ही पड़ेगा वो तो सब जगह पे okay that see unless and until a girl change her point of view ये चलते रहेगा okay if दहेज देना जितना आप लेते हो रॉन्ग है उतना आपको पता है कि आप दे रहे हो तो वो भी तो रॉन्ग ही है and there are many movies now shown कि लड़की वॉकआउट कर लेती है शादी के इसमें तो ये डेयरिंग लड़कियों में होगा तो चेंज होगा वरना नहीं and it is not like this I have we can come across many things तो सबसे ज्यादा दहेज किसको दिया जाता है इंडिया में which community gets the maximum dowry statistics है I am not speaking anything which is absolutely you know कैसे अवे में बोल रहा हूँ statistical record prove करता है IS Brahmin South Indian as the maximum dowry वो करोड़ों में जाता है उसके सेकंड रैंक पे आता है IS ब्राह्मण वो यूपी वगैरह उस साइड का सेकंड नंबर पे आता है और उसके बाद बहुत जगह पे मतलब अलग अलग डिफर करता है बिकॉज वहां पे पोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां तक मतलब आई एम नॉट गोइंग टू एनी ऑफ द स्टेट्स मतलब घूमने के लिए काफी कुछ के लिए बट इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र स्पेसिफिक फॉर माय स्टेट सिंपल है चिल्ड्रन मेरे यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट कोकण साइड देन देयर इज विदर्भा नागपुर उस साइड पे वहां पे भी डाउरी होती है कि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ओके जैसे आई रिमेंबर माय सम ऑफ माय फ्रेंड्स कलीग्स जो इस फील्ड में
टीचिंग फील्ड में देयर इज सिंपल लॉजिक। मेरे बहुत सारे रूरल एरियाज के कलीग्स है जो टीचिंग फील्ड में सबसे पहले जब आपने स्टार्ट किया था तो वहां पे लॉजिक था 5 लाख डाउरी फॉर अ बीएड पर्सन, फिक्स रेट था, वहां पे स्लैब्स है। तो बीएड किया है 5 लाख मिलेगा, फार्मर है तो 2 लाख के, इंजीनियर वगैरह थोड़ा डॉक्टर वगैरह तो सोचो कितना आया होगा। नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है, बिकॉज वहां पे ये ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली माय डियर, अगर उसको प्रॉपर जॉब मिला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ। तो उनका लॉजिक भी बहुत अच्छा था। 5 लाख डाउरी हुआ, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब अरे 5 लाख में क्या होता है, वो तो फर्क पड़ता है। उस टाइम पे फिफ्थ पे कमीशन था, सो 5 लाख एट दैट टाइम इज अ ह्यूज अमाउंट ओवर देयर। अब गांव साइड में चला, अपने से बड़े स्कूल्स नहीं होते, जरा स्मॉल स्मॉल इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे गवर्नमेंट होता है, तो वहां पे पोस्ट जो आपको मिलती है गवर्नमेंट की, इट इज ऑल मनी माइंडेड। तो वहां पे उन लोग सिंपल है, 3 लाख उस ऑर्गेनाइजेशन को दो, तो मान लो ऑर्गेनाइजेशन गांव में इसका है, ये भाई बोलेगा तुझको परमानेंट पोस्ट मिलेगी पर 3 लाख देना है, तो आई गिव हिम 3 लाख के, जॉब सिक्योर हो गया के, बीएड डिग्री मेरे पास ऑलरेडी थी, शादी कर ली मैंने के, 5 लाख आए, 3 लाख इसको दिए, तो उनका फेमस डॉलर के, छोकरी भी आई नौकरी भी आई, कॉमन डॉलर। एंड देन कभी कभी हम लोग मजाक में उसको चलाते थे पॉइंट को, तो अरे तू इतना पढ़ा लिखा टीचर है, टीचर तो पकड़ अपन एनी अदर पार्ट, बच्चों को क्या पढ़ाता है, डाउरी लेना नहीं चाहिए, ये नहीं, मतलब खुद डाउरी ले रहा है तो सुना लू। मतलब अगर तेरे माँ बाप ने तुझे लिखा बेल्ट डाल के दिया ना, मेंट फॉर सेल्फ है ना, इट इज मेंट, बॉयज आर मेंट फॉर सेल्फ। जो डाउरी लेते हैं उनके तो मैं वही बोलूंगा कि खरीद दिया लड़की को। मैं तो बोलता हूँ जिस लड़की ने डाउरी दिया ना, उसने हस्बैंड को से नौकर नहीं, उसको सिर्फ कुछ गैर होगा, हाँ कुत्ते की तरह, उसकी तरह उसको ट्रीट करना चाहिए भाई। खरीदा हुआ गुलाब जो है देखना नॉट बिकॉज एक बार इंसल्ट, 2 बार इंसल्ट, अरे तेरे इज्जत में आए है कि नहीं डाउट है, कोई भी आता टपनी मारती आ बोल बोल कुछ तो बोल रहा था नहीं, सारे फिल्म पे रिप्लाई नहीं कर रहा। Then children, the manageable age should be raised to 18 years for girls and 21 years for boys. Last 2 years कोविड के पहले अगर सुना होगा बीच में डिबेट चालू था तो मैनेजेबल एज रिड्यूस करने का, अभी बढ़ा तो बीच में उनका कुछ तो चालू था कि some of the people manageable age should be reduced. What was the reason, you know? Reduce करके बोले आगे शादी नहीं होता है। अभी बढ़ा है, बच्चा उसके पहले डिबेट ऑन दिस क्या, द मैरिजेबल एज टू बी ब्रॉट टू 16 उसका अपना ही लॉजिक था उनका, बिकॉज दैट वाज मोर एडुकेटेड बाय वो काप पंचायत वगैरह सुना होगा, काप पंचायत नहीं काप पंचायत नॉर्थ साइड में जरा सर्टन जैसे ग्राम पंचायत से पंचायत ही है, इट वाज काप पंचायत, इट बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वो एक तरह का रिलीजियस टाइप का पंचायत, तो दे आर मोर बिलीवर्स ऑफ
our religion, our community, our tribe, उस कैटेगरी में आता. Now what was this? आपने शायद कभी पेपर में पढ़ा होगा, काप पंचायत orders honor killings. Okay, मतलब अगर मान लो कि there is a girl and boy, girl is maybe a Muslim and a boy is maybe a Hindu, और उन्होंने भाग के शादी कर ली है, तो अब लड़की या लड़के वाले जो भी दोनों साइड में से कोई एक है जो काप पंचायत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, तो उन लोग बोलते हैं कि बाबा दोनों अलग कास्ट के हैं, रॉन्ग किया है, बस इनको मार दो. और द गर्ल के डैड या मॉम या उनके रिलेटिव या उस सन के डैड या मॉम उसके रिलेटिव अपने ही बच्चों को मार देते. लिटरली इट वाज डन कि उसको ऑनर किलिंग करते. मतलब उनको वो प्राइड था, क्या मैं अपने बेटे या बेटी को किसी और कम्युनिटी में शादी करने वाला हूं, तो अगर उसने कर ली है तो मैं उसको मार के जेल में जाऊंगा, पर आई वुड नॉट अलाउ इट. Yeah, it's the thinking, my dear. इसे माइंडसेट है. तो अगर मैं आप बोलूं हिंदुत्व का एक माइंडसेट है तो उसको आप कुछ नहीं करते, वैसे उनका है. ऐसा नहीं है. वहां पे काप पंचायत ऑल्सो नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम तो अपने आप में इट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट वहां पे इफ देयर इज अ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, तो इट्स लाइक अ बिग. और नॉर्थ साइड में देखो अपर कास्ट और लोअर कास्ट, इट्स अ बिग थिंग. क्या अगर एक लोअर कास्ट के लड़के ने अपर कास्ट के साथ शादी किया या अपर कास्ट के लोअर कास्ट में, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है. देयर दिस थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर. अब उनका लॉजिक क्या था, क्या एक साइड अपन बोल रहे हैं एज बढ़ाने के लिए, इन लोग बोल रहे हैं एज कम करने के लिए. देयर लॉजिक वाज सिंपल. अगर कम एज में शादी करेंगे तो नॉर्मली व्हाट द टाइम द गर्ल रन्स अवे, वो एक 16-17 साल की होती है तब लड़की भाग जाती है. तो 16 साल को अगर मैरिजेबल एज कर दिया तो बाय द टाइम शी कम्स टू नो क्या प्यार और भागना और ये तब, उसके पहले उसकी शादी कर दी होती है. Okay, so this problems would not come into picture. वो उनका लॉजिक था. Without any scientific background, she is not capable to become a mother or whatever. Okay, so that children अब इसके लिए एज बढ़ा चुके हैं. अपोजिशन बहुत कुछ होने के बाद भी मेरा क्या हो रहा है. Next, the marriage couple should be expected to declare the birth of the first child, to spare the second at sufficient interval, and for proper upbringing and to stop the third one. पहले और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 5 साल का गैप होना चाहिए, और दूसरे बच्चे का तीसरा होना ही नहीं चाहिए. That is what the government says. And majority of the time will find the बहुत टाइम पे आज की जनरेशन में ये होता है, आपके भाई और आपके बीच में कम से कम 3-4 साल का डिफरेंस दिखाई देता है. That's very common. पर अगर वही चीज आप पुराने समय में देखो, 1 साल या 2 साल के गैप होते हैं. 1 साल तो 22 साल का मिनिमम तो 9 मंथ होना चाहिए. Next, people will be advised to adopt family planning methods by which they can prevent pregnancy. This include devices for both man and woman. For example, condoms such as Nirod, intrauterine devices such as copper T, oral pills such as Maladi. Various methods of contraception have been described in the next section in more detail. उसके बाद फैमिली प्लानिंग ऑलरेडी कल अपन ने डिस्कस किया था, इन्वर्टेड रेड ट्रायंगल विद रेड बैकग्राउंड और ब्लैक करके रेड हाईलाइट करना, then that would be referred as a family planning symbol. Family planning is not only concerned with the family planning, but nowadays it is concerned with all the aspect of reproductive health, right from family planning to premarital, what we can counseling. Apart from that, feeding and looking after of the maternal, that is mother, and the child which is born. ये सब family planning के इसमें आता है. So not only the बच्चा रुकना है, बच्चा नहीं करना है, ये family planning का part नहीं है. It is a larger perspective of family planning. Then पीछे दिया हुआ है terms for 3 aspects. In terms of having small family, total welfare of small family, including diet and nutrition of the child, of pregnant woman, pregnant mother, subsequent care of the children, that is immunization, oral rehydration therapy to ensure survival of the young mother.
By that we complete the description, मतलब जो भी बकवास था. अब proper जो पढ़ना है वो है methods of contraception. हर चीज के लिए पीछे से कमेंट होना ही चाहिए यार. आज चालू करते हैं क्वेश्चन में तो दूसरे 2 लेक्चर होंगे तो बताऊंगा. ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में मैं गिवन यू 3 डिफरेंट मेथड्स. पहला दिया है हार्मोनल मेथड्स, दूसरा दिया है बैरियर मेथड्स, तीसरा दिया है इंट्रायूट्राइन, चौथा दिया है सर्जिकल मेथड्स. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, और ये कर बोलेगा ना. Yes, sir. Sir, होगा ना. Shade skin पर वो green dark tone. बोर्ड का दिख रहा है. बोर्ड दिख रहा है. हाँ सर. Okay, so we have the methods under contraception are: one, physical barriers, so physical methods; second, chemical methods; and third, surgical methods. So 3 main headings of contraceptive methods: physical, chemical, and surgical. Now, in the physical methods, physical matlab physically it is stopping the meeting up of the egg and the ovum, a sperm and the ovum, or it is killing the part. So that is what we say as physical method. A physical में वहाँ पे दिया है condoms, diaphragms and sperm killing agent, वो barrier में दिया हुआ है. इसमें से सिर्फ condoms, diaphragms and cervical caps, ये 3 मेथड physical method में, physical barriers. Now, out of these 3 methods which have been used, the most common is the first, condoms. Okay, tube-like structure made up of latex, worn by the male as well as by the female. There are male condoms and there are female condoms. Okay, normally the maximum usage by default is always male condom, because बहुत time female condom होता है, यही पता है. Okay, some of you might have heard about female condom for the first time today. ये एक possibility है. Man only नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपना बुक बनाना है, आउटडेटेड वर्जन है, इसके लिए आपको मैं नया बोल रहा हूँ. तब मेल कॉन्डम्स भी होते हैं और फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं. Okay, but how many of us are heard about female condom? शायद किसी ने, आज पहली बार सुन रहे होगे आपने शायद. Okay, so there are male as well as female condom. जब पता ही नहीं तो फीमेल कॉन्डम्स है, so how would the user use it? Females use कैसे करेंगे? पहली. Second, India में it is male dominating society, so normally female doesn't go and buy a female condom as, so इसके लिए male condoms ज़्यादा use किया है. अब the moment you are at home and imagine saying condom word, so इसमें imagine at your home, आपके घर का रिएक्शन था. It's a big reaction over. Okay. In time when almost I would say 10-12 years back, 10-12 साल पहले, तो यू आज की डेट में इंटरनेट ब्ला ब्ला सब जगह पे तो कॉन्डम बस बहुत
ज्यादा यूज होता है तो इतना सा अजीब लगता है नहीं सुनने के। पर 10-15 साल पहले अगर कॉन्डम वर्ड किसी लड़के या लड़की के मुंह से निकला तो इट इज लाइक there would be a big expression in the parents' faces because we are from a very secure or can say a proper family जहाँ पे ऐसा बकवास बोला नहीं जा सकता। Now, condom word was considered taboo in Indian society basically. It was the government work in this case. The बीच में government का ad था, famous ad था, a boy goes to a medical counter and he wants to buy a condom. Okay? अब वो कॉन्डम खरीदना है उसको, पर उसके काउंटर के बाजू में एक अंकल है, आंटी है, यहाँ पे कोई और खड़ा है, तब सबके सामने एक कॉन्डम दो। कैसे बोल पाएगा? It means he's very shy to use that word to ask him. Okay? अब सर उस एड बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था बिकॉज उस एड में एक सडनली अ कार्टून कैरेक्टर कम्स इनटू इट। वो काउंटर के ऊपर एक पैरेट आता है कि इज अ कार्टून कैरेक्टर, ये नॉर्मल कैरेक्टर दिखाई, बट इज अ कार्टून इन दैट पार्ट। एक पैरेट आता है उस काउंटर पे खड़ा रहता है, मतलब सिट्स ऑन दैट काउंटर एंड बोलता है अबे शर्माता क्यों है, कॉन्डम दे ना, कॉन्डम 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 कॉन्डम। नाउ व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल इज अ वेरी सिंपल पार्ट। बच्चे को क्या पसंद आता है? चॉकलेट। In terms of cartoon cat, okay? छोटा बच्चा कार्टून देखने में बहुत ये लगता है। अब does he understand what that parrot is saying? No. कि उसके लिए वो कार्टून कैरेक्टर है, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। वो कार्टून कैरेक्टर made that ad famous. बहुत जगह पे this ad become too famous because of that advertisement का जो tagline और जो कैरेक्टर दिखाया गया था उसमें। And the best part was इस ad का सीधा साधा the you can say straight away was my family experience. Okay, we all sitting at home eating food, ad TV पे आ रहा है and my 4-year niece, okay, suddenly चिल्ला रही condom condom my सर मेरे मॉमलेट को मॉमलेट भाभी के पास ऐसे एक जगह शक्ल देखे कार्टून कैरेक्टर ना। So imagine the impact of that ad. Okay, तो शायद वो वर्ड इतना फिर बुरा नहीं माना गया जितना पहले माना। अब छोटा बच्चा बोल रहा है he is obviously saying it without knowing the meaning. Okay, उनने अगर किया होता उस टाइम पे तो विदाउट मीनिंग का तो पता नहीं, पर मम्मी डैडी को नहीं। That's the second is diaphragm and cervical caps. The diaphragm and cervical caps both are used by the females. They are basically a cap-like structure which is made up of silicone, which is inserted into the female reproductive tract. दो तीनों केस में सबसे बड़ा important है, can be used only once, they can be reused, washable है और reuse करते हैं। इसके लिए more use in terms of females is diaphragm and cervical cap, but protection need not be 100%. Okay, not properly fit, etc., then still sperms can move across. So this one is closely associated with another factor, is chemical method. अब chemical method में क्या आता है? सबसे पहले pills और दूसरा जो आता है वो है permissible gels and foams. आपके बुक में सिर्फ जेल लिखा हुआ है, permissible जेल लिखा हुआ है, आया ना? नीचे लिखा है ना? बैरियर मेथड में सी वाला पार्ट, sperm killing, spermicidal agents. Okay, now children, what exactly is this? Diaphragms or cervical caps के rim के ऊपर, because not 100% efficiency, तो इसके ऊपर gel या foam का एक layer लगाया जाता है. So if this sperms etc. moves by side, then that would be killed. That is what spermidal gels and
foams are. Again, very rarely used as such because gels and foams are something like you apply cream onto your body. Okay, कई जन को body पे cream लगाना doesn't feel good as such. Okay, अजीब लगता है. So applying creams or gels onto the vaginal area is again not comfortable for all. And it's a tropical cream, may show itching, rashes, whatever. Suit करेगा नहीं करेगा उसका अपना problem है. So may not be a ideal thing to use by many of them. So इतना use नहीं होता. Then most common use is pills. Okay. Now pills में the India का सबसे पहला brand which was produced by Lucknow Institute of Research was the famous brand 1950 जब 1951 में हमने reproductive health use किया family planning, so we use it as Saheli. Saheli. Saheli is the most common brand used in India for the contraceptive method. Now, any other brand you know? What's that? Any other brand? Yes, clear. ये पता है हम इतने शरीर में हो नहीं सकते हो, but still, whenever we write pills, etc., what are pills? Pills are nothing but hormonal combinations. Okay, अब pills में दो type के pills होते हैं. In fact, there are three types of pills, but normally main category is two. One, they are referred as oral pills. Second, vaginal pills. The one which is intake in terms of oral part is what we say as oral. जैसे अपन medicines खाते हैं वैसे खाना. Vaginal pills are small tablets which are inserted into the female vagina. Okay. Now, oral pills and vaginal pills, दोनों hormonal combination है. More of the time, it is a combination of estrogen and progesterone. Okay, which will disturb the menstrual cycle, leading into not having a pregnancy. But in case सबसे बड़ा problem, इनके side effects भी है, because at the end they are hormones. So अगर एक lady additionally hormone ले रही है, तो कहीं ना कहीं उसके hormonal disturbance तो दिखेगा ही. So इसका side effect would be hormonal disturbance for the body. Second important thing is when you take the pills, the most common pills जो हम सुन के आते हैं वो है I pill. Yes, yes. Okay? क्या मैंने बोला ना? Then I pill अगर आप brand का नाम लिख रहे हो तो do not write this. You would get wrong because I pill के अलग अलग categories हैं. I pill regular and I pill emergency contraceptive. Brand name I pill, उसके सब categories हैं. So you are not writing any of this. Reason because जब pills बोला जाता है तो broad division होता है और pill which is taken on a regular basis. आपको महीने में 21 days ये pills लेना होगा. Girl need to take 21 or 22 days except the 5 days of menses. तो अगर 28 या 29 का है तो 5 दिन निकाल दे तो 24 दिन वो लड़की को लेना पड़ेगा this pills. If she misses out, then there might be a chance, but very rare. एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ना है. But then ये daily basis पे लेना and it is a precautionary measure. क्या मुझे बच्चा नहीं चाहिए? But the second type of pills है इसको अपन बोलते हैं emergency contraceptive pills या उसको बोला जाता है what this one second category which is known as 72 hours pill. मतलब इसको emergency contraceptive pill कहते हैं. चल ये pill coitus के बाद लिया जाता है. Means if the coitus is occurred within 72 hours of the coitus, the pill need to be taken so that pregnancy will not. जबकि ये हर दिन लिया जाता है so that there would not be the pregnancy का part और ये सब कुछ भी नहीं होगा. यहाँ पे already coitus is done. The girl may be in a fertile period or whatever period, she is having a thought कि शायद मैं pregnant रह जाऊँ. So in order to avoid that, this pill is taken. Okay. Then
अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये पिल आसानी से मार्केट में मिले. Okay, so if suppose anybody your age group also goes and buy this market medicine, केमिस्ट आपको दे देगा, बिकॉज उसके लिए वो बॉदर नहीं कर रहा है कौन लेके जा रहा है, उसके लिए बहुत पैसा आ रहा है ना, बाकी कौन लेके जा रहा है उससे मुझे क्या करना. Okay, now imagine I'm not giving a part, but your group which is there, age group जो है, you enter into a wrongdoing where a girl feels okay I might become a pregnant. Can she say this thing to her parents? No. अब पढ़ी लिखी है, थोड़ा बहुत नॉलेज नो यहाँ वहां से सुन के आ ही गए, तो उसको पता है मार्केट में क्या अवेलेबल है. I pills are the adaptive. She would go to the chemist, take the pills and eat it. So is the chemist right person to give what prescription she should have? No. सर उसने तो मेडिकेशन ले लिया बिकॉज अवेलेबल इजीली है, पर उसका अपना साइड इफेक्ट. सर इट इज द ओनली डॉक्टर हु कैन एग्जामिन एंड सर उसको पिल कितने क्वांटिटी में देना है, कौन सा वर्क करेगा, कौन सा कितना वर्क करेगा. सो इफ शी जस्ट टेक उसको पूरा स्ट्रिप दे दिया, अभी उसके माइंड में जो डर है पेरेंट्स को पता चलेगा. सो शी वुड टेक नॉर्मल मेडिसिन, सुबह लेना शाम पे लेना, नेक्स्ट डे 10 गोली है 10 गोली खा लिया अल्टरनेटली. in that case इसका फंक्शन सिंपल होता है, it immediately break down the uterine wall, menses चालू करेगा immediately within 3-4 days. So can there be pregnancy? No. Pregnancy तो नहीं होगी, अगर इस केस में forced menses and that bleeding could be profuse, even leading to hospitalization. फेटल भी हो सकता है, उसके जान पे आ जाए इतना ब्लीडिंग हो सकता है. अच्छा उस केस में डॉक्टर वुड कम टू नो, यू हैव टू से व्हाट वाज द रीजन, अभी जाके वो उसको ट्रीट कर. जिसके लिए आपने पूरा छुपा के इतना सब कुछ किया, डॉक्टर वुड कम इनटू पिक्चर. एंड फर्स्ट थिंग इज व्हाई टू गो टू दैट लेवल वेयर आई नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स. Not a right age to enter into any of this. हर चीज का एक टाइम होता है and that time is suitable enough for it and not something curiosity है, इसके लिए बहुत कुछ try and error doesn't work. Okay, 90% over here curiosity chapter के बारे में. Okay, that I understand. When I was a stage group, शायद मुझको भी सेम था, मैं अलग नहीं हूँ तुम्हारे. Okay, so वो curiosity I think everybody has, because मेरे टाइम कुछ जाना ही था, because we were not knowing anything about this. तुम तो बेटर कर जरूर, सब कुछ पता है. Then comes then अब केमिकल के बाद आता है इन दोनों के बीच में का पार्ट, a combination of physiochemical method, जिसके अंडर आता है आयुडिस, या कई बुक्स में इसको आयुसीडीज भी कहा है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और सिंपल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. नाउ द मोस्ट कॉमन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इज कॉपर टी लूप, commonly referred as, लिखते हो ऐसे लिखा है CU for copper T loop. It looks exactly like this. एक छोटा सा पार्ट है, it is almost a small size. कितने साइज का? It's a small size. It is much smaller than your palm size. इतने साइज का चीज है, which is introduced into the female uterus. It's a small minor procedure and it is inserted in the female uterus part. हाँ, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है आयन रिलीजिंग कॉपर लूप्स और एक होता है हार्मोनल रिलीजिंग लूप्स. सो लेजेस्ट्रॉन और नेवेस्ट्रॉन 270 कुछ नाम है, आई डोंट रिमेंबर. दैट्स अ हार्मोनल फॉर्मुलेशन का लूप है, और ये जो है वो कॉपर आयंस का लूप. नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉपर टी लूप? कॉपर टी लूप जब इंसर्ट किया जाता है इन द यूट्रस पार्ट, इट रिलीजेस कॉपर आयंस, जिसे नाम से पता चल जाता है. So it releases copper ions. Mode of action is two. One, copper ion
reduces the mortality of the sperm की speed को ये कम कर देता है. So can the sperm meet the ovum? No. Chances ज्यादा है कम हो गए. It is minimizing, but can it stop? No. एक आध नमूना स्पर्म कुछ ज्यादा स्पीड पे था, उसको कम भी किया, 200 पे था, वो 100 पे आया, 100 still good enough to reach. Okay, then एक आध sperm can still reach over there. So it is only trying to minimize the chances of meeting, but not completely stopping. तो एक mortality को कम कर रहा है, पर fertilization को stop नहीं कर सकता. So then children, its second property comes into picture. Copper ion convert or makes the uterine wall hostile for implantation. So Nehal. I had a point was ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद मम्मी डैडी ने इतने मेहनत करके भेज दिया मास को. 1 घंटे के अंदर तुझे अगर इन्फेक्शन होना तो हो ही गया होता. With such special people around. So here, two functions. One, reduces the mortality of the sperm. Second, makes the uterine wall hostile for implantation. तो अगर fertilization हो भी गया, तो blastocyst implant नहीं कर सकता. It will not allow the blastocyst to embed in the uterine wall. So pregnancy retain नहीं. That is what this copper T loop does. मार्केट में आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट्स मैक्सिमम एड फॉर दिस. इसके एड्स ज्यादा आ रहे हैं. ओके, नो डाउट इसका एड आपको समझने के बाहर होगा शायद से, बट देयर आर एड्स व्हिच आर डिपिक्टिंग दिस पार्ट. ओके, सो दिस एड इज बिकॉज यहाँ पे इन सब का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है जब हायर लेवल पे पढ़ोगे, पर ये उन सबको अवॉइड करके आता है. इस मार्केट में करंट डेट पे जो अवेलेबल है वो है 3 years का कॉपर टी लूप एंड 5 years का कॉपर टी. मतलब वंस इंसर्टेड इट कैन वर्क फॉर 3 years. इफ नॉट तो आपने 5 साल का यूज किया तो 5 years. अब इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पे एक बार डाला सो इट अवॉइड्स दैट पॉपिंग अप ऑफ द पिल एवरी डे. तो हर दिन याद रहेगा नहीं रहेगा, वो झंझट से छुटकारा मिल गया. एक ही बार इंसर्ट किया, 3 साल तक कोई भी मेथड और यूज करने की जरूरत नहीं. Okay? So that is why it is more convenient. Am I clear? Yes, sir. And now say over here. Go ahead. Yes, sir. Last method, that is your surgical method. The surgical method में उन्होंने दिया हुआ है ट्यूबेक्टोमी एंड vasectomy. Then normally exam में diagram दिया जाएगा. They'll give you diagram and they just identify the type of method used. What is the part explaining? So अगर fallopian tube cut किया है तो it is known as ट्यूबेक्टोमी. अगर श्वास डिफरेंस कट किया है तो उसको vasectomy. सर पुराने जमाने में ये irreversible method था, अभी भी irreversible बोला जाता है, but I think nowadays it is improved methods है जहाँ पे it can be again restored. Okay, but once upon a time it was a completely irreversible method. Okay, one you can say one of the reason maybe क्या हमने बहुत reasons देखे हैं, but इंदिरा गांधी assassination और संजय गांधी का भी assassination मतलब he died and all this thing. क्या? हाँ, ये उनके कैदियों को रिलीज किया था. इसको नहीं, आई थिंक राजीव गांधी. She was given the mercy petition after so many.
she obviously completed, I think, her sentence maybe, but still mercy petition ke liye, to be hanged was the part, but the Gandhi family itself left her saying that it's okay. Okay, it's a big plan. वहाँ पे ना वो left okay वगैरह सब political gimmicks होते हैं. Okay, so we are not going into that part. क्या वो उसको छोड़ के क्या मतलब it was a political mileage and all these things. But the basic part to understand over here is that tubectomy और vasectomy के part में जब ये किया जाता है सबसे पहले प्रॉब्लम आता है कि ये करेगा कौन, लड़का या लड़की. Second thing is lot of counseling needs to go ahead with this part because दोनों के condition में there are a lot of back thoughts into it. सबसे पहला लड़के में किया तो after doing this operation will I become impotent, will I not be able to have coitus, will be the penis will never erect, ये सब उसके mind में चलते रहता है. Vice versa, वो boys के लिए, girls का तो दोस्त है उसके आगे जा रहा है. For her it would be अगर मैं ये ऑपरेट करूंगी तो will I have no menstrual cycle, मतलब मुझे 30s में अगर मैंने ये किया तो 30s में मुझे मेनोपॉज आ जाएगा. Is that which is going to happen in that case? अब सर you know मेनोपॉज के अपने खुद के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सबको काउंसिल करना पड़ता है. तो but doing so will not stop her menses. Menses continues to occur even in this and even in the intrauterine devices. Okay, for the males it would be same applicable. The penis erection would take place, he will not be impotent, he would still release the semen, only semen will not have sperms. That's the only difference which will occur, but everything remains fair enough like previous condition. So for that it needs to be understood, and that is what we say as tubectomy and vasectomy. Okay, then giving the example of Gandhi etc. because जब इमरजेंसी लागू की गई याद होगा, हाँ, तब it was संजय गांधी ने forcefully ये चालू किया to reduce the population. वो हम दो छोटा परिवार सुखी परिवार. Okay, then that was one of the reasons which went against them. Is जबरदस्ती पकड़ के लोगों को ये forcefully किया गया, and in doing so it might have happened, you know, अनपढ़ है, मैरिड है, अनमैरिड है, सबके ऊपर ही जबरदस्ती करवाए. मैरिड है तो समझ में आता है, अनमैरिड की और मैरिड में भी इसके बच्चे हुए नहीं अब तक, उसको अगर फोर्सफुल करोगे, so will he be quite in that case? So all that was some of the reasons which went against them. That's tubectomy and vasectomy. Last part. I know there's a like break time, 5 minutes. So sir, that can be a part because वो property का अपना एक खुद का ये है, it might have a minor can say defect wherein क्या वो still 100% efficacy नहीं है. इसमें से कोई भी method 100% efficacy देता नहीं है except surgical methods. इसीलिए government implement last method ज्यादा करती है, surgical methods, vasectomy and tubectomy. And for this government has initiated a lot of things. This is done free of cost in government hospitals. Okay, actually my question to everybody is vasectomy, tubectomy मान के करते हैं reversible method. Okay, government किसको target करना चाहिए? बच्चे हैं, उनके उनमें से किसको टारगेट करें? Which strata of our society? Lower मतलब poor, beggars, because उनमें हम दो हमारे 4, 5, 6 साल. अब सर उनको अगर मुझे टारगेट करना है, so what? उनको मैं बोलूंगा if I am a government employee से okay आ जाना ऑपरेट करना हो गया, will you come? So what? We need to give something in return, no?
गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम होते हैं, उसमें से एक होता है क्या आइदर मॉनिटरी रिवॉर्ड्स टू अट्रैक्ट, या फिर भी समथिंग लाइक गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह, या फिर उनको फैमिली के लिए कुछ चाहिए उससे कुछ दिया जाता है। मतलब अगर मान लो पैसे की बारी है, सपोज गवर्नमेंट गिव्स 2000 रुपीज, अपने लिए 2000 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, फॉर अ पुअर पर्सन इट इज मच बिग अमाउंट, और उसमें भी वो गरीब बेगर कैटेगरी के उस कैटेगरी का होगा जो शराबी है, अगर शराब पीना, बीवी को मारना एंड हैव अ पार्टनर एंड बच्चे पैदा करते हैं, अब अगर उसके प्रोसीजर में ये किया तो उसका लॉजिक क्या होगा, 2000 रुपया मेरे महीने का दारू आ जाएगा, गावटी दारू, देसी कितना 150 होता है? काम करना यहाँ पे आके खड़ा है, वहां पे बैठा बेटर ऑप्शन, मतलब मुझे ना एक बहुत ज्यादा हेल्प होगा, मैं आपके पेरेंट्स को मिलूंगा, आई वांट टू सी योर पेरेंट्स, मतलब मैं उनके पेरेंट्स को मिलके पूछूंगा आपका बच्चा बड़ा स्कॉलर है, ना उनको पढ़ा था पहला तो उनको पढ़ना, हमको पढ़ा था पीटीएम में ऑलवेज फर्स्ट पॉजिटिव अबाउट द चाइल्ड, मैं भी वही करूंगा, जैसे वो शोले में अमिताभ बच्चन करता ना वैसा धर्मेंद्र के साथ वैसे करूंगा, आपका बच्चा बड़ा होना है, एक बड़ा स्कॉलर है, उसको कुछ भी पूछो, सिगरेट, दारू, बियर, कॉन्डम, ड्रग, आईपीएल, के बारे में पता उसको, ऐसा एक चीज जो उसको नहीं पता सिवाय प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री और सिलेबस के, कभी मिला लेना के, वैसे ही बताओ, जैसे कोविड के बाद ना, आफ्टर दिस कोविड पहला बैच है, इसके लिए मैं इतने बड़े प्यार से शांति से तुम्हारा बकवास, वरना इतने टाइम में ना ये मेरे क्लास में कभी नहीं बैठा और ना तुम कभी बैठा, एंड एक्सपीरियंस ये भी कहता है ऊपर से भी कुछ नहीं होता, इनफैक्ट सर्वर इज फ्लोइंग आउट ऑन, so once I have written a remark on that part and given you, फिर कौन ऐसे बहुत जन को किया है, now the last part is MTP. अच्छा यहाँ पे I want you to know is MTP भले लिखा है, it is not a part of contraceptive method. तो चिल्ड्रन कभी भी याद करना, अगर जब भी एग्जाम में लिखते हो, फर्स्ट लाइन फॉर दिस हैज टू बी दिस ओनली, it is not a method of contraception but a way to abort a child. okay, contraception का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होने नहीं देना है, ये कॉन्ट्रासेप्शन है, इसमें प्रेगनेंसी हो चुकी है, the child has already been developed in the embryo form or whatever, so उसके बाद उसको kill करना is forceful induction, that is what given over there, induce abortion or medical termination of pregnancy. What is the legalized weeks for abortion in India? 3 months, 5 months, confirm करना 3 या 5, कोई 3 बोल रहा है या कोई 5 बोल रहा है, okay, my first question to you is, क्या अगर कोई बोल रहा है 3 months तो why 3 months? within 5 months. हार्टबीट तो 1 महीने में निकाल देते हैं, हाँ ओके, आसानी से डेवलप करने के लिए पहली वो चीज की आसानी से बाहर आ जाए, जब अबॉर्शन किया जाता है उसको सीधा स्क्रैप आउट करके निकाला जाता है, there's nothing like it's like a parasite onto your head, उसको ऐसे चाकू से स्क्रैप आउट एंड रिमूव आउट, there's nothing like बड़े प्यार से ऐसा आएगा ना, चलो 3 months
अब 5 मंथ्स बोल रहे हो कहते, तो वाई 3 मंथ से 5 मंथ्स क्यों? बहुत सारे कंट्रीज में द अबॉर्शन हैज गॉन एट अ हायर लेवल आल्सो 6 मंथ्स, ओके, उसके आगे भी जा रहा है और नहीं लीगलाइज है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स है। चल अब देयर आर 3 ways to look after it. There are some countries जहाँ पे abortion allowed ही नहीं। Saudi Arabia. Okay, I don't know Saudi Arabia पर नीदरलैंड्स या इधर तो है। नीदरलैंड इधर तो है जहाँ पे abortion allowed ही नहीं। एक there are some countries जहाँ पे abortion legalized है, but with a suitable criteria. जैसे इंडिया में the criteria was abortion can be allowed up till 3 months. Okay? बाद में amendment किया गया लॉ के अंदर and now it has raised to 5 months and we are still fighting for it to increase further. Okay? 6 या 7 months तक लेके जाने का हम फाइट कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे कंट्रीज में ये है। Now children, my simple question is 3 मंथ था, फिर 5 मंथ किया, हम उसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। So why first only 3 months तक अलाउ? Okay. Sir, not experienced surgeons. That clear? नहीं? Sir, 3 months की confirmation ऐसे कि वो report है। वो तो यार 24वें दिन पे इम्प्लांट होता है तो निकल रहा है। सर वो तो आज ही पता चला। हाँ? चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। Okay? Something to do with another legal term, ethnosia. Ethnosia सिंपल वर्ड में मर्सी किलिंग। Sir, it was a taboo. ऑलमोस्ट नियर टू इट। अब उसको रिलेट करो मर्सी किलिंग के साथ। Sir, the proper fetus partner. That's like killing a human. Like Killing a human. That's a जिंदा जान को मार। यार हमारे बायोलॉजिकल टर्म में 3 मंथ्स के पहले वाले चीज को एम्ब्रियो बोला जाता है। The moment the embryo crosses 3 months, I say it as fetus. Fetus का definition होता है a embryo which first resembles a human being. तो अब वो human being की तरह दिखाई देना चालू हो जाता है। So the moment I use the word human being, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ एंड इंडिया में मर्सी किलिंग नहीं है, एथनीशिया इज नॉट अलाउड। तो अगर मैं मर्सी किलिंग अलाउड नहीं है, सो कैन आई किल द फीटस? नो। सो पहले 3 मंथ के पहले अबॉर्शन था, 3 मंथ के आगे नहीं करते। बट लॉट ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ पे एबनॉर्मलिटीज आर डिटेक्टेड आफ्टरवर्ड, 4 मंथ और 5 मंथ में मेजर जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चरल चेंजेस बनते जाते हैं तब ये स्कैन में पता चलता है। पर बाय द टाइम इट वाज टू लेट फॉर द अबॉर्शन। बहुत सारे कपल्स को एबनॉर्मल चिल्ड्रन पैदा हुए एंड दे फॉट फॉर देम। रीजन वाज सिंपल। एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हुई 4 या 5 मंथ के आसपास, कैन दे अबॉर्ट? नो। So they were forced to have a child. Up. Imagine a person or a couple who is giving a birth to an abnormal child with the rarest of the rare disorders. And okay, afford तो दूर की बात है ना, it's a very different part. Afford तो बहुत दूर है वो. But there is certain diseases जहाँ पे the small baby is born as good as a vegetative state. मतलब वो हिल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। Many other terms तो बहुत spinal bifida से cerebral palsy and many other. पर इस केस में वो बच्चा मूव नहीं कर पा रहा है
खुद के बेसिस पे कुछ नहीं कर पा रहा है और बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज स्प्लिट और व्हाटएवर कुड बी द रीजंस, उसके बॉडी में इतना दर्द है जो दर्द आपके हाथ को काट के हो। So I'm repeating, not something like वो knife cut और थोड़ा मोटा, आपके हाथ को जब काटा जाएगा तो वो जो दर्द आपको महसूस उस टाइम पे होगा, वही दर्द उस बच्चे को है। एंड डॉक्टर्स कैन नॉट स्टॉप दैट पेन, they can only reduce it to certain extent. थोड़ा वो दर्द पूरी तरह से, and that too with the heavy drugs of injection. मतलब सोचो एक दिन का बच्चा पैदा हुआ है कि दर्द से चिल्ला रहा है, दर्द से रो रहा है, और उस वक्त कर क्या रहे हो, एक इंजेक्शन दूसरा तीसरा चौथा ये देखे उसको सिर्फ शांत करने की कोशिश करते, वो भी शायद नहीं पाओ। Will the couple want to see the child in this state? जो मूव नहीं कर सकता, जो खुद कुछ नहीं कर सकता, उस बच्चे को उनके माइंड में सिर्फ एक ही आएगा, let him die peacefully, rather than seeing this torture to that small baby. जब बहुत सारे केस फाइट हुए तब जाके, बिकॉज मेनी कंट्रीज में अलाउड है, हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं, इसके लिए ये चेंज किया गया। एंड जो कंट्री का मैंने एग्जांपल दिया, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, मैं शायद लास्ट टाइम देखा था नेट के ऊपर, नीदरलैंड है किधर, सर इट वाज आवर एफर्ट्स फॉर दैट कंट्री टू चेंज द लॉ। देयर वाज an Indian couple doctor who were been over there, she had some septicemia problem and she has to have abortion done. उस कंट्री का लॉ उसको परमिट नहीं करता, and she was in such a state कि वो cannot fly back over here also. She died in that case. और तब भी recently it was I think 2015 या 16 की बात है जी, या 14 की, that time officially मोदी गवर्नमेंट बनी थी, and you know that time initial time ना मोदी सिर्फ इधर उधर कंट्रीज में जा ही रहा था, all across the globe. So it was his efforts at that time, क्या अपने पार्लियामेंट के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा हुआ about this death of the Indian couple, okay, and we see to it कि हमने UN में ये फाइट किया and that country had to change the law, but no doubt वो कंट्री ने लॉ चेंज किया है with a dot like window open for abortions. मतलब पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, अभी भी ना के बराबर ही है, बट उन्होंने इतना क्राइटेरिया दिया है कि एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अबॉर्शन अलाउ किया जाए। Sir, what about India? Yeah, India. maybe whatever could the reason be. नहीं, not पैसा, मेडिकली कुछ समथिंग होगा, she could not be flown back as such, maybe whatever could be the reason, but चलन ये हुआ था और ये नेट पे आपको मिल जाएगा, इंडियन कपल्स who are not allowed to abort I think in a foreign country, तो आपको ये नेट पे मिल जाएगा। उसके अलावा मर्सी किलिंग वाज अ पार्ट ऑफ अबॉर्शन, तो इसके लिए अलाउड नहीं किया 3 months तक और 5 months तक, ओके। और इसका भी एक एग्जांपल है, आई थिंक केएम नर्स अविता नहीं तो नाम था, ओके, एवरी गर्ल शुड डेफिनेटली रीड अबाउट, हर एक लड़की ने ये केस पढ़ना चाहिए ही चाहिए, KEM nurse anesthesia mercy killing, okay, you really as a girl आपको ये पढ़ना चाहिए, okay, you will find very pity क्या अपना गवर्नमेंट करता है, शायद 100 गाली भी दे दोगे अपने लॉस, but a girl who was molested and she was 20 years in vegetative state, 20 साल कोमा में, and she died recently only, but उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ये वो बहुत कुछ किया गया, but at the end she died peacefully, no doubt, पर उसके बारे में जरूर पढ़ना, उस केस के बारे में। Sir, नाम KEM nurse anesthesia mercy killing of a KEM डालोगे ना, KEM nurse incident इतना भी डाल दिया, पूरा विकिपीडिया में सब में वो आ जाएगा इंसिडेंट। It is
horrible incident which had occurred in Mumbai as such. Okay, और ये one and the only one example which has can occur. Okay, 20 साल को एक vegetative state में जाता है because it has been she was molested by a tried to be molested by a compounder. Then 20 साल एक ही जगह पे रहना, इससे बड़ा कोई पनिशमेंट हो सकता है नहीं. एंड जिसने ये क्राइम किया था उसको पनिशमेंट था कुछ 4 या 5 साल का जेल. लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्लीटिंग ऑफ और सेकंड ऑफेंस में वापस पकड़ा गया फॉर द सेम टाइप ऑफ क्राइम. ओके, सो देन यू शुड थिंक, क्या डू वी रियली नीड टू leave such people or hang these people? अपना लॉ कहीं ना कहीं इसमें डिफर करता है कि ह्यूमन राइट्स बकवास सब कुछ. बिकॉज द सो कॉल्ड इंडिया का डेमोक्रेसी जो हम बोलते हैं, यूएस भी अपने से बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहां पे भी हैंगिंग इज अलाउड. वहां पे सिर्फ एथनेसिया होता है, मतलब वहां पे वो सीधा इंजेक्शन देके मार देते हैं. तो उस जैसा कंट्री अगर मार सकता है तो हम क्यों नहीं? And I think the only punishment for them has to be a death sentence. Okay? Rules, government and government policies. We stop. That completes the part. तो फिलहाल यहाँ पे MTP के लिए 2 चीजें याद रखना है. For MTP to occur 5 months, which is required. Second thing, a girl need not ask the permission of the husband or any concerned family members to get it aborted. She can go and walk into any hospital, get it aborted, and that's it. So for that, she doesn't require any special permission from a husband or family members to get a consent. That is what it says. So, and it is done when the family doesn't want a child, mother is not prepared to have a child, or it is molestation or been raped cases, जहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है. It is her will, क्या वो चाहिए या नहीं चाहिए. Solely it's the mother's responsibility whether she wants or whether she doesn't want, and not the husband or family. So officially we complete the chapter. We'll wait for 5 minutes and then we start with the next. Okay. So we start with the next part, endocrine system. बोलो. सर एसी भी बंद करो. ऐसी बंद करो. बंद ही है. बंद है. नहीं बंद है. बंद ही है. कौन सा ये चैप्टर नंबर Okay. Shall we start? Yes, sir. Now, I will start with the next chapter, the last chapter of the syllabus, endocrine system. Then, अब ये चैप्टर करने से मेरा टाइम थोड़ा और कम यूज होगा. Okay, reason. Endocrine system जब भी पढ़ाया जाता है, I require a small time more to make you understand there is certain terms, oogenesis, spermatogenesis, then something known as Graafian follicle, corpus luteum, ये सब terms यहाँ पे है. अब प्रॉब्लम ये है कि जब पहले पढ़ाया था तो ये क्या होता है, अब अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है. So I am not going to explain any of that terms. Assuming कि आपको ये सब पता है, इसी से मैं आगे बढ़ूं.
ओके सो अब चिल्ड्रन ध्यान देना, आपके बुक में एंडोक्राइन ग्लैंड जब पढ़ रहे हो स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, and the difference between hormonal control and nervous control. Then they given you उसके नीचे बॉक्स के नीचे दिया हुआ है हार्मोन का डेफिनेशन जो आपको पढ़ना है। उसके बाद there are 12.2 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, 8 प्रॉपर्टीज दी हुई है, आपको एटलीस्ट 4 तो याद होनी ही चाहिए, मिनिमम 4 इज रिक्वायर्ड एंड इजीली 6 तो आराम से याद रहते हैं, तो शायद नहीं होगा पर बाकी 6 तो आसानी से याद हो सकते हैं। अब वो 8 प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहे सबको, अब 8 प्रॉपर्टीज में 6 प्रॉपर्टी को मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 प्रॉपर्टी आपको बाय डिफॉल्ट पढ़ना ही है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी में नहीं आया तो ये मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स और किसी चीज के लिए आएगा। So they can ask you, given steroidal exam, hormone examples, or one which is whatever, one example of amine hormones. ये अलग से पढ़ना है आपको point, which you need to compulsory learn. Then उसके बाद next 3 endocrine gland लिखा हुआ है, उसमें चिल्ड्रन 7 points दिए हुए हैं, adrenal, pancreas, thyroid, pituitary, parathyroid, thymus, gonads. इसमें से अपन ने 6 कंप्लीट किए हैं, मतलब एज सच पढ़ने के लिए। थाइमस शायद पढ़ा नहीं होगा, ओके सो सिलेबस में वी डोंट हैव 7, वी हैव ओनली द फर्स्ट 4 जो हाईलाइटेड किए हुए हैं बोल्ड बिस में, सो वी आर ओनली लर्निंग 4। इससे सर 4 पढ़ना है तो 7 क्यों दिया? रीजन सिंपल है सर, स्टडी 4 का करना है, पर टर्न योर नेक्स्ट पेज, वहां पे डायग्राम दिया हुआ है, और डायग्राम एग्जाम में आएगा और तब लेबल करने के लिए 7 तो आ सकते, भले करना 4 है पर लेबलिंग के लिए 7 आ सकते। सो उस डायग्राम में आई थिंक दे आर लेबल्ड इज एड्रिनल, पैनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी, जो 4 बोल्ड है वो तो आ ही गया। गोनाड्स इज गिवन एज टेस्टिस एंड ओवरीज, थाइमस वहां पे दिया नहीं है, और कौन सा नहीं दिया है? पैराथायरॉइड। अच्छा, थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है पैराथायरॉइड, तो वो लेबलिंग में थायराइड और पैराथायरॉइड एक ही होता है, सिर्फ यू कैन राइट पैराथायरॉइड बिहाइंड थायराइड, तो वो डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब थायराइड के ऊपर एक येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, यू कैन से इट एज वॉइस बॉक्स और यू कैन ऑल्सो कंपेयर इट एज थाइमस। थाइमस आपके यहाँ पे होता है, थोड़ा और नीचे जाओगे हार्ट और ग्लैंड के बीच में का पार्ट, उस तरफ थाइमस होता है, समवेयर ओवर हियर इज अ थाइमस ग्लैंड। सो थाइमस लोकेशन में नहीं पूछेंगे, पर गोनाड्स, टेस्टिस, ओवरीज या पिट्यूटरी, एड्रिनल, ये सब पूछ सकते हैं। ओके देन चिल्ड्रन, पहला ग्लैंड उन्होंने स्टार्ट किया एड्रिनल ग्लैंड, सेकंड है गिवन इज पैनक्रियास, थर्ड है गिवन यू इज योर थायराइड, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, चौथा हमारे लिए फोकस होगा बिकॉज ज्यादा इसके ऊपर हमें फोकस करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पे चिल्ड्रन और 2 चीज प्रॉब्लम आती है, एक है अगर आप देखोगे कंटेंट पार्ट में देखना पिट्यूटरी के, ग्रोथ, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन लिखा हुआ है, वो पढ़ना बिल्कुल काम का नहीं। दैट व्हाटएवर इज रिटन ओवर देयर, उसमें से सिर्फ ग्रोथ हार्मोन पढ़ने के काम है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ इट इज लिटरली जस्ट द इंट्रोडक्शन, उसके बारे में डिटेलिंग कुछ भी दिया नहीं है वहां। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना टर्न टू वन मोर पेज, एक पेज और टर्न करना है, एक टेबल दिया हुआ है सर, मेरे इसमें पर एक पेज है, आपका पता नहीं मुझको, टेबल हेडिंग 12.3 12.3 है, तो वहां पे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी
Yes, sir. उसके अंदर हार्मोन्स के नाम और उनके डिटेल दिए हुए हैं। Then, आपको पहले पेज पे जो थियरी था वो इसी से पार्ट रिलेटेड है, तो वो थियरी इनकम्प्लीट है, ये पूरा है। So, ये भी पूरा नहीं है, ये 99% है। ओके, अभी भी 1% मिसिंग है। वो 1% मिसिंग राइट हैंड साइड के पैड पे दूसरे टेबल में अंडर सेम हेडिंग पिट्यूटरी। तो हमें पिट्यूटरी 12.3 से भी पढ़ना है और पिट्यूटरी 12.4 से भी पढ़ना है। We need to extract the content from both the sides, 12.3 as well as 12.4, तब जाके दोनों का आंसर प्रॉपर हो जाता है। अकेले पढ़ने जाओगे तो इट इज पार्ट एंड पार्सल, सम थिंग्स आर मिसिंग, सो यू नीड टू स्टडी बोथ। बाकी हार्मोन्स में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ पिट्यूटरी हार्मोन्स में प्रॉब्लम। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, अच्छा उसके बाद उस टेबल में एक नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है। स्कूल में क्या इन्फॉर्म किया? पढ़ाया नहीं मतलब चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ? गुड, कर लो खुद से, नहीं नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, ओमिट किया गया। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पिंक वाला पार्ट डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। Okay, it is not a part of syllabus, so it has been omitted. Okay, then feedback mechanism, negative feedback delete किया गया है, but expected है is the positive feedback. Right hand मतलब एक पेज पीछे टर्न करना, under the heading 12.4 नीचे ऑरेंज बॉक्स दिया हुआ है। Okay, then एक ही लाइन का आंसर एक्चुअली पॉजिटिव फीडबैक का, तो कोई बड़ा सा चीज पढ़ने के लिए है। So we do not have negative feedback and positive feedback का एक लाइन से पढ़ना है। तो नेगेटिव फीडबैक का जो डायग्राम दिया हुआ है आपको पीछे वाले पार्ट पे, वो स्टिल बेटर वर्जन है इन अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट, पर इसका टेक्स्ट बुक पुराना होगा। पुराना मतलब आई थिंक 3-4 साल पहले का। ओके, तो उसमें और एक 2 डायग्राम्स है, एलाबोरेट डायग्राम्स फॉर नेगेटिव फीडबैक, वो उससे बेटर वर्जन rather than this तो इसमें नेगेटिव फीडबैक समझ में नहीं आता। किसी उन्होंने एग्जांपल देके दिया हुआ है, जो पुराने डायग्राम्स थे they were in a better way to understand what is negative feedback. अपना दिमाग नहीं फोड़ना, हमको सही नहीं अपना। So we would be only restricting to the positive one and the 4 glands. सर अब इसमें से एक बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन जो होगा चारों ग्लैंड के लिए, वो क्या होगा? लोकेशन और एक तो फंक्शन। अब लास्ट 10 साल के पेपर पिक कर के 10 साल के पेपर में सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे गए इन पार्ट में से। एक डायग्राम दिया गया, थायराइड का दिया है मान लो, या एड्रिनल का दिया हुआ है, या पिट्यूटरी का दिया हुआ है, या पैनक्रियास का दिया हुआ है। सो उसके ऊपर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस क्या होंगे? लोकेशन पूछा, फंक्शन पूछा, पर्टिकुलर व्हाट इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय देम, गिव द फंक्शन, डेफिशिएंसी में क्या, हाइपोसेक्रेशन, हाइपोसेक्रेशन, मतलब उस एक पर्टिकुलर ग्लैंड के ऊपर पूरा 5 मांगा गया। ये एक टाइप का क्वेश्चन। या 90% क्वेश्चन जो आए हैं वो है सिंपल टैबुलर फॉर्म। मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। लास्ट 10 साल का पिकअप करके देखना, आपको ये ज्यादा मिलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस कम है। आपको टेबल में सिर्फ वो वैल्यूज डालना है। तो टेक्निकली व्हाई आई एम सेइंग यू दिस चिल्ड्रन इज, चैप्टर भले 3, 4, 5, 6 पेज का है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोग एक वर्ड या एक लाइन के ऊपर कुछ नहीं पूछते। तो इतना कंटेंट पढ़ के मिलने वाला सिर्फ 5 या 6 मार्क्स का ही कंटेंट, और वो कंटेंट 1 वर्ड का होगा। गिव द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस कोई पर्टिकुलर हार्मोन, या मे बी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन, ओके, व्हाट इज द कंडीशन व्हेन इंसुलिन इज मोर। तो वैसे एक एक वर्ड का आंसर है। तो इसमें ज्यादा डिटेलिंग पे फोकस मत करो, यहाँ पे फोकस करो टेक्निकल टर्म्स, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस, या एड्रेनालिन, इंसुलिन,
ग्लूकोकॉर्टिकोइड, इन वर्ड पे आपको फोकस ज्यादा करना। Am I clear? Yes, sir. So we start with the chapter. I said first up I will give it on the PPT पे बाद में दिखा दूंगा ताकि जल्दी हो जाए. So we today start with a very small and simple gland, that is thyroid gland. Okay. अब thyroid gland में सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है what is the location of thyroid gland. वहां पे लिखा होगा बोलो मैडम. Front of the neck, just below the larynx. Situated in front of the neck, just below the larynx. Excellent. Your version of answer. Okay. इसके लिए आपके मार्क्स बड़े प्यार से जाते हैं. Okay, you will write. Children, you most of the time write. You write in the neck region below the larynx. या in the neck region इतना लिख के आते हैं. या in the neck region near the larynx. अब चलो इसका एक प्रॉब्लम है. When I say in the neck, के neck ये पूरा होता है. ये भी neck है, ये भी neck है, ये भी neck और ये भी neck है. So you are not specific. Second, in the neck near the larynx. The neck larynx ऊपर नीचे इधर इधर. तो इसके लिए मार्क्स जाते हैं. And then you come and argue with the bio teacher. मैम मैंने तो वही लिखा था. neck तो लिखा है, larynx भी लिखा है. कीवर्ड है. कीवर्ड है तो किधर है वो नहीं लिखा है. So children, be specific. Okay? In front of the neck, below the larynx is where your thyroid gland is present. डायग्राम दिया गया आपके बुक में. Yes, sir. आया ना सर. डायग्राम दिया जाता है और सेम डायग्राम ए और बी जो दिया गया बैक पार्ट फ्रंट व्यू. Okay? The two lobes of the thyroid are interconnected by a small bridge known as isthmus. तो वो isthmus डायग्राम में लेबल नहीं किया हुआ है. तो इन समटाइम्स वो डायग्राम के बीच में एरो ड्रॉ करके एक साल पूछा है. तो डायग्राम के बीच में एक एरो किया था and they asked you what is it. So it is isthmus. The connection between the two thyroid lobe is known as isthmus. Now, so location हो गया. Where is thyroid present? It's a butterfly gland भी कहा जाता है. क्योंकि दिखने में बटरफ्लाई की तरह होता है, इसलिए इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा गया. Now, thyroid gland secretes two hormones, thyroxine and calcitonin के बारे में कुछ लिखा है वहाँ. Good. अब इधर ध्यान देना. Calcitonin का function is out of syllabus, but if the question is asked, name the hormone produced by thyroid. तो thyroxine और calcitonin लिखना जरूरी है. You just cannot write thyroxine. Calcitonin syllabus में नहीं तो लिखेंगे नहीं. Calcitonin का function syllabus में नहीं. हमें उसका डिटेल नहीं है. पर calcitonin हार्मोन ये थायराइड का पार्ट है. ये लिखना है आपको. तो हार्मोन secreted by thyroid is thyroxine and calcitonin. Am I clear? Yes, sir. Yes. Okay. अब पहला हार्मोन जो पढ़ेंगे एक ही तो है थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन इसके पार्ट में 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन, what does hyposecretion leads to? And second question, what does hypersecretion? चलिए ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. आपको सिर्फ टर्म्स लिखने हैं. क्रेटिनिज्म, मैक्सोडिमा, गोइटर, सिंपल गोइटर, एक्सोपर्मिक. इनके लिए डायरेक्ट मार्क्स है. एक क्वेश्चन जो आएगा, गिव रीजन, आपकी बुक में अंडरलाइन करना. ग्रीन बॉक्स. आयोडीन इज द एक्टिव नेम. यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इन फूड इज रिकमेंडेड. उस लाइन को अंडरलाइन करना. दैट इज आस्क्ड एज अ गिव रीजन. ओके. डॉक्टर्स एडवाइज टू हैव अ आयोडाइज्ड सॉल्ट in the food, or why it is recommended to have iodized salt in the food. So iodine is required for the formation of the thyroxine. किनके घर पे थायराइड पेशेंट है?
टेस्ट करते हैं, कभी उनका टेस्ट रिपोर्ट देखा? कभी इतना ध्यान से नहीं देखा। अगर उनका टेस्ट रिपोर्ट देखोगे तो वहां पे 3 टेस्ट के बारे में लिखा होगा। क्या बोलो? Hemoglobin, cholesterol, it's a normal blood report and not thyroid. थायराइड पैनल जो बोला जाता है उसपे ये 3 टेस्ट होते हैं, T3, T4, TSH। हमें ये तीनों पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अपन ग्रीक एंड लैटिन पढ़ रहे हैं, भले वहां पे लिखा नहीं है तो ये नाम पढ़ना है, स्पेसिफिकली बिकॉज TSH अपन पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में थायराइड के रिलेटेड मॉडल, तो ये तो पढ़ना ही। T3, T4 is a chemical name for thyroid। आप कुछ अलग नहीं पढ़ रहे। ट्राई आयोडोथायरोनाइन, टेट्रा आयोडोथायरोन। ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ट्राई आयोडो मतलब iodine। So this can require 3 molecules of iodine to be formed. This requires 4 molecules to iodine। ये दोनों थायरोक्सिन के टाइप्स हुए, ये मॉलिक्यूलर टाइप्स है जो यूज होते हैं फॉर द फंक्शन। सो दैट इज व्हाई विदाउट आयोडीन कैन थायरोक्सिन बी फॉर्म? नो। एंड दैट इज व्हाई आयोडाइज्ड सॉल्ट इज रिकमेंडेड इन द फूड। नाउ आयोडीन is a precursor of thyroxine, so it is required for the thyroid gland to function properly. That is why iodized salt is recommended. Which geographical area in India will find more problem associated with this? Northeast. Why? Hilly areas. तो अपन hilly areas को पकड़, ये नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, हिली हिमालय तो जाने का है। कारगिल का हिली एरिया है, बाजू में ही है ना, स्टेशन के बाहर से ही बाहर चालू होता है कारगिल। तो कैन आई फाइंड इंसिडेंट्स ओवर देयर? क्यों? हिली एरिया है ना वो भी तो। यस, व्हाई? क्या आयोडीन होता है? कारगिल एक नहीं होगा, there's something one missing on that part. When I say northeast areas, these are the hills which are very far off from the mean sea level. MSL के ऊपर बहुत ऊपर जाता है, okay? So mean sea level से अगर बहुत दूर है, it is very far off. So then by nature the soil has a deficiency of iodine या ना के बराबर. So for them the iodized salt has to be given to avoid such conditions. अब थोड़ा घूम के जाते. Yes, son. If suppose today onwards, आज के दिन से अगले 15 साल तक मैं आपको सॉल्ट बट विदाउट आयोडीन दे रहा हूं, विल इट मेक अ डिफरेंस? क्यों? मतलब आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना जरूरी है? बीच में गवर्नमेंट ये प्लान करेगा आयोडाइज्ड सॉल्ट डालना, उसका भी कॉस्ट आता है। The government was planning to have iodized without iodine salt. Reason simple है children. Those which are living next to the sea level, specifically Konkan belt, okay, then हमें iodized salt की जरूरत नहीं है। अगले 10 साल से भी नहीं खाओगे ना, एक फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें भी अगर if you are a strictly vegetarian, fish खाने वाले हो, तो there is हर वर्ग के iodine, okay, तो children इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Even if you are vegetarian also, will also not make a difference because अपने soil में there is ample amount of iodine.
So iodine need not be supplemented as such. But just for safety measure, iodine डाला जाता है so that everybody gets a proper nutrient. So that is why iodine is recommended. So आपको give reason आएगा. अब आता है is hyposecretion and hypersecretion of thyroxine. So thyroxine chemically referred as T3 or T4 hormone. This thyroxine to be formed requires iodine. So iodine is recommended. If it is less in your body, it is associated with some problem. If it is more in your body, it is also associated with some problem. So सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो है hyposecretion of thyroxine. It results into three conditions. सबसे पहले simple goiter, दूसरा myxoid, तीसरा creatinism. अब चिलन पहला छोड़ के बाकी दो इनमें कीवर्ड को अंडरलाइन. Yes, myxoedema in adults and cretinism in children. तो चिल्ड्रन एग्जाम में भी क्वेश्चन वैसे ही आता है. हाइपोसिक्रीशन इन चिल्ड्रन लीड्स टू. तो अगर वहां पे आपने गोइटर माइक्सोडीमा लिखा तो मार्क्स भी वैसे ही मिलने वाले. चिल्ड्रन का रेफरेंस है तो क्रेटिनिज्म, एडल्ट का रेफरेंस है तो माइक्सोडीमा, और थायराइड आयोडीन का रेफरेंस है. There is less secretion of iodine, less amount of iodine, resulting into less amount of thyroxine. तब लिखोगे simple goiter. You are just not writing goiter. You are writing simple goiter because goiter का और type है, exophthalmic goiter. So SIF goiter is not a valid answer. Simple goiter is the proper answer. Am I clear? तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिंपल गोइटर. आयोडीन की कमी होने की वजह से सिंपल गोइटर हो रहा है. So this is nothing but swelling of the thyroid gland, neck, which is associated with the swelling of the thyroid gland. अब swelling होने की वजह से what would happen is thyroid gland expands. Then there is a problem in the intake of food, etc. Also, apart from that, it is deficiency of the iodine and not thyroxine. Thyroxine में कोई प्रॉब्लम नहीं है. थायरॉक्सिन अपनी बॉडी बना लेगी, पर वो बनाने के लिए आयोडीन की कमी है, इसके लिए बना नहीं पा रहा. दूसरा कंडीशन क्रेटिनिज्म. व्हाट इज क्रेटिनिज्म? इन द चिल्ड्रन इट अफेक्ट्स. अब इनमें द चाइल्ड वुड बी शोइंग पुअर ग्रोथ डेवलपमेंट, सो मेंटली as well as physically retardation. मतलब he would be dwarf and he will be mentally retarded. Then अब यहाँ पे confusion है. जब pituitary gland पढ़ोगे, growth hormone deficiency lead to dwarfism, but not mental retardation. वो बौने होते हैं, IQ would be like you and me. But cretinism में वो बौने होते हैं और mentally retarded भी हो. So why like this? What is the general function of thyroxine hormone? लिखा है basal metabolic rate और BMR, BMI सब कुछ इसके कंट्रोल में. What is basal metabolism? Rate of cellular population resulting बेसल मेटाबॉलिज्म सबको पता होना चाहिए. Maintaining your body entire weight, functioning, everything is basal metabolic rate. अगर आपका BMR high है तो you are like, if your BMR is very slow then you're like me. No, I'm not good my dear, I'm obese already. Okay, तुम्हें लग रहा है पर मुझको पता है with my height
आपको BMI तो पता होगा, हाइट एंड वेट का रिलेशन होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ऑब्वियसली आई एम ऑलरेडी क्रॉस 30, तो आई एम ओबेस से भी आगे, 35 क्रॉस करूंगा तो ओबेसिटी में आ जाऊंगा। सो अभी थोड़ा बच्चा है कि उस तरफ जाने के लिए ट्राई तो कर रहा हूँ इस तरफ आने का, पर वो सिर्फ दिसंबर में नहीं होता है कि 1 महीने तक वो न्यू ईयर होता है, अभी वेट कम करूंगा, उसके बाद 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी वापस बैक टू नॉर्मल। सर मेंबरशिप लेते हैं 7 दिन से 3 दिन होता है सर। हाउ टू इंक्रीज वेट? थोड़ा बात कम कर। हाँ सुना, बेसल मेटाबॉलिज्म ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है आपके वेट के ऊपर। अब वहां पे चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। आपके क्लासेस के बाहर अभी जो नया बिल्डिंग बना है, पहले ब्लैंक था, वहां पे कुछ नहीं था। इमेजिन करना that there is a empty you can say space over there, okay, and that space belongs to okay, एक लौता वारिस उस जगह के, ऑब्वियसली करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी वहां पे। okay? आप चिल्ड्रन सोचो, he has that place in his name but he doesn't have any fund to create a building, उसको बिल्डिंग मानने, but no fund for buying anything or making a building etc. So obviously वहां पे बिल्डिंग तो आ नहीं सकती। okay? मतलब exactly same thing, बिना पैसे के कुछ नहीं आता, so it would be just lying empty over there. थायराइड ग्लैंड और ग्रोथ हार्मोन दोनों ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, पर ग्रोथ हार्मोन इज समथिंग लाइक, इसका काम है आपके न्यूट्रिएंट्स और इसको ये करके भी हाइट बढ़ाता ही है। सो हाइट बढ़ाने का काम करेगा, बाकी कुछ नहीं। पर थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल, थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल कि आपने जो भी ठूसा, इट हैज टू बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स पहले एब्जॉर्ब होंगे, तब जाके वो यूटिलाइज होंगे। मेटाबॉलिज्म उसी को बोलते हैं। सो अब मेरे पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो विल माय बॉडी फंक्शन प्रॉपरली? सो थायरॉक्सिन वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बिना थायरॉक्सिन के ना बॉडी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाएगी, अगर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो मेंटल रिटार्डेशन तो दिखना ही दिखना है। मेंटल रिटार्डेशन के साथ में डॉर्फिज्म भी दिखाई देगा। पर ग्रोथ हार्मोन में मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, पर ग्रोथ इज नॉट ऑकरिंग बिकॉज वो बोन पे अफेक्ट करता है। सो दैट इज व्हाई द बोन इज नॉट एलॉन्गेटिंग, इसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है हाइट में, वरना ही नॉर्मल डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। सो दैट्स व्हाट द थायरॉक्सिन डज। एम आई क्लियर? 99% ये हार्मोन फीमेल्स में ज्यादा अफेक्ट, एंड दैट इज व्हाई आफ्टर प्रेगनेंसी, इसके लिए आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ द मदर कोसते रहते हैं, है ना, शादी के पहले पढ़ते थे मैं कितनी स्लिम ट्रिम थी, तू पैदा हो गई कहा पता हो मेरा वेट बढ़ते गया। रीजन इज दिस, ये अक्सर होता ही है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो सडनली द मदर हु वाज स्लिम ट्रिम थोड़ा प्रेगनेंसी में शी वुड गेन वेट व्हिच इज अ नॉर्मल फिनोमेना। तो उसके बाद बहुत सारे हीरोइंस पतले भी होते हैं, ऐसे नहीं कि वो ऐसे ही मोटे रहने वाले, बट रसम क्या वो मोटे उससे ज्यादा हो जाते हैं इस टाइम पे। दैट्स बिकॉज ऑफ द थायरॉक्सिन इश्यू। अगर आपका सडन वेट गेन बढ़ रहा है तो वन ऑफ द रीजन कुड बी थायराइड प्रॉब्लम। हार्मोन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, इसके लिए आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो गया। मेटाबॉलिज्म रेट कम हो गया, इसके लिए विद इन 1 or 2 months you would increase the weight by 20-30 kg also, 20-30 also, इतना डिफरेंस हो सकता है। okay? क्या next last 5 minutes and we complete our part. Second is कैटलिज्म हो गया। लास्ट वाला पार्ट है माइक्सोडीमा। माइक्सोडीमा थोड़ा ध्यान देना, वहां पे डायग्राम दिया हुआ है, ग्वाइटर का दिया हुआ है, उसके साथ में गिवन यू एज एक्सोथर्मिक ग्वाइटर
और माइक्सोडीमा का भी डायग्राम, माइक्सोडीमा का भी डायग्राम आता है बोर्ड में, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, अलग टेक्स्ट बुक्स में है। सो मैं आपको पीपीटी पे दिखा दूंगा। सो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। अगर माइक्सोडीमा है तो द पर्सन एकदम सा राउंड फेस दिखेगा, आंख के नीचे स्वेलिंग दिखाई देगी, ऐसे पफिनेस दिखाई देता है। सो इट्स अ वेरी क्लियर कट सिम्टम क्या इट इज अ माइक्सोडीमा। या दे विल शो द लेग पार्ट, लोअर पार्ट ऐसे स्वोलन पार्ट दिखाई देंगे, या हाथ पार्ट स्वोलन दिखाई देंगे, नॉर्मल साइज से मोटे दिखाई देंगे। तो इट्स अ कंडीशन ऑफ माइक्सोडीमा। चलन आपके पूरे टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी लेग, हैंड और इसका स्वेलिंग इधर किसी भी एग्जांपल में नहीं। इवोल्यूशन में तो अलग ही दिखाई देता है। पॉइंटर में क्लियरली ये स्वेलिंग दिखाई देता है, तो वो नहीं होता। एक्सोऑप्थेल्मिक में ऐसे बटन के माफिक आंखें दिखाई देंगे बाहर निकलते वक्त, तो वो भी नहीं होगा। And the only option has to be the myxedema. Swelling of the hand, face, feet is said. The body tends to retain the water, and that is why it is known as myxedema. Edema is retention of body fluid, commonly seen in the adults only. Because adult में अब ना उसका ग्रोथ अफेक्ट होने वाला है, ना IQ अफेक्ट होने वाला है, ना all these things. So इसके लिए it is seen as myxedema. चलो यहाँ पे आयोडीन प्रॉपर है, but थायरोक्सिन is not formed properly. सिंपल गॉइटर में थायरोक्सिन बन सकता है, कंडीशन उसको ऐड नहीं। तो दोनों में डिफरेंस इसी चीज का है, तो थायरोक्सिन बन नहीं रहा है, इसके लिए कैटेटिज्म और मैक्सिमम। तो कैटेटिज्म छोटे बच्चों में हो रहा है, और दैट टू वहां पे ऊपर एग्जांपल दिया हुआ है। If in a goat earlier if there is an atrophy of thyroid gland, then it leads to all this condition, creatinism is such. By that we stop over here. Next lecture में PPT पे फटाफट कर लेंगे। So I would require 1.5 hour max to complete. Before I leave, important thing है बैठना। Next lecture when we meet, we are officially 2 lectures I think again. Next Tuesday whatever. सर 2 लेक्चर में 100% अपना सिलेबस तो हो जाएगा। उसके बाद do you want any lecture for any particular 1 घंटे या 2, ये मुझे इन्फॉर्म करना है, वरना I would scrap out my next lectures। उसके बाद मैं वापिस लगाने के किसी भी चक्कर में रहता है। Once I surrender my lectures, I am gone forever. Okay, so do not expect me कि अब वापिस मैं मिलूंगा। खागरा ब्रांच में एक बार चांसेस है मिलने के, मैं बाजू में रहता हूँ इसके लिए। बाकी ब्रांच में तो 99% क्या 9 के लिए आऊंगा, तुम लोग की शक्ल देखने क्यों आऊंगा? तेरी शक्ल कौन सी अच्छी है, उसकी कौन सी अच्छी है? तो रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए देखते हैं।